Okay, welcome back, my dear students. We will continue with the topic phenols. We will see today chemical reactions of phenol. In fact, we started in the previous lecture where we had seen that phenol is very reactive compound. It is found to be acidic in nature. It gives the litmus test, alcohol does not, and phenol is more acidic than alcohol that we had seen in the previous class. Today, once again, we will see some more points regarding acidic nature of phenol. So, as we all know, when phenol is subjected to ionization, it gives the phenoxide ion and free hydrogen ion. This phenoxide ion gets stabilized through resonance, and because of its stabilization, it remains in stable state. It does not react immediately with H plus ion, thus providing free H plus ion in the solution, and that accounts for the acidic nature of phenol. Okay, so stability of phenoxide ion is the reason for acidity of phenol, correct? Stability through resonance. तो याद रखेंगे इस बात को. Now we also know that when phenol is reacted, point number 1 लिखते हैं, when phenol is reacted with concentrated acid, concentrated alkali, phenol can react with alkali like NaOH और KOH. ये हमने लास्ट क्लास में लास्ट पॉइंट पढ़ा था. हमने react with alkali like NaOH और KOH producing salts. तो ये भी कंफर्म करता है. नेक्स्ट phenol can react with active metals, This is also we had seen, and forms the metal salt of it. Now we will add few more aspects related to phenol. Now what happens? The OH group of phenol is ortho-para-directing. Group. So it is a ortho-para-directing group. तो जो भी इनकमिंग ग्रुप रहेगा वो ऑर्थो पैरा पोजीशन पे जाएगा, because ortho para position is having more electron density. Okay, it has more electron density. So next point, the electron withdrawing group like NO2 present at ortho or para position, increases acidic nature, increases acidic strength due to delocalization of नेगेटिव चार्ज, है ना. तो अगर फिनॉल पे, है ना, इसमें इसी पॉइंट को, इफ फिनॉल इज हैविंग नाइट्रो ग्रुप एट ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन, ये फिनॉल बनाया, ये NO2 ग्रुप ऑर्थो पे लगा दिया, NO2 ग्रुप पैरा पे भी लगा दिए, है ना. तो दिस ऑर्थो पैरा पोजीशन ऑफ फिनॉल, this nitro group withdraw electron from benzene ring. It withdraws electron from benzene ring.
and as it withdraws electron from benzene ring, this negative charge becomes more delocalized, यानी वो और अच्छे से स्प्रेड हो जाता है, and that will lead to the stability of phenoxide ion. समझ लीजिए इस बात को, डीलोकेलाइजेशन ऑफ नेगेटिव चार्ज क्या करता है, फिनॉक्साइड आयन की और स्टेबिलिटी बढ़ा देता है ना। अगर मैं इसको ऐसा शो कर दूं तो शायद आपको इजी हो जाएगा याद रखने में, है ना। ये ग्रुप क्या करते हैं, बेंजीन रिंग से इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करते हैं, इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करते यानी इसका ये नेगेटिव चार्ज कम कर देते फिनॉक्साइड आयन का, और ये नेगेटिव चार्ज कम हो गया तो जितना चार्ज कम रहेगा स्टेबिलिटी उतनी ज्यादा होती है ना। क्योंकि चार्ज जो भी आयंस होते हैं वो अनस्टेबल होते हैं, क्योंकि वो अपोजिट को अट्रैक्ट करने के लिए तैयार बैठे रहते हैं। तो जैसे हमने उसका वो नेगेटिव चार्ज को डीलोकेलाइज कर दिया और स्प्रेड कर दिया, उसका अथॉरिटी थोड़ी कम कर दी, इन्फ्लुएंस नेगेटिव चार्ज का कम कर दिया, तो क्या हो जाएगा, उसकी और स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी। ऑलरेडी तो स्टेबलाइज है रेजोनेंस से, अब उस पे NO2 ग्रुप लगा दो, तो वो क्या करेगा, NO2 ग्रुप इसका जो नेगेटिव चार्ज है, इस नेगेटिव फिनॉक्साइड के नेगेटिव चार्ज को और ज्यादा डीलोकेलाइज करके स्टेबलाइज कर देगा, है ना, पूरे फिनॉक्साइड आयन को स्टेबलाइज करेगा। तो NO2 ग्रुप इंक्रीजेस इलेक्ट्रॉन स्ट्रेंथ ऑफ फिनॉल। वैसा ही इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, अब आपको शायद ये फंडा तो समझ जाएगा, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लाइक CH3, है ना, ये प्लस आई इफेक्ट शो करते हैं, ये याद आ रहा होगा आपको प्लस आई इफेक्ट। तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप CH3, इफ these group CH3 group are present at ortho and para position, है ना, ये ऑर्थो पैरा पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, इफ दे आर अवेलेबल, तो ये फिनॉक्साइड आयन ही लिख रहा हूं मैं, और ये पैरा पोजीशन पे CH3 ग्रुप। तो देखिए CH3 ग्रुप क्या करेगा, अपनी जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो रिंग को देगा, यानी रिंग पे और नेगेटिव चार्ज बढ़ाएगा और उसको चार्ज्ड बॉडी बना देगा, चार्ज्ड फ्रैक्शन बना देगा। तो इसको और ज्यादा चार्ज बनाने से क्या होगा, उसकी स्टेबिलिटी कम हो जाएगी। जितना नेगेटिव पावर, नेगेटिव स्ट्रेंथ बढ़ेगी, वो उतना अपोजिट वाले चार्ज को अट्रैक्ट करने के लिए तैयार है। तो CH3 ग्रुप बेटा क्या कर रहा है, ये अपने शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन रिंग को दे रहा है। तो उससे क्या हो रहा है कि रिंग का जो नेगेटिव चार्ज की स्ट्रेंथ है वो बढ़ जाएगी, और ये नेगेटिव चार्ज की स्ट्रेंथ बढ़ गई तो क्या हो जाएगा, उसका अट्रैक्शन टुवर्ड्स अपोजिट चार्ज बहुत ज्यादा हो जाएगा। उससे क्या होगा कि ये यहाँ पर रिएक्टिविटी बढ़ जाएगी, और रिएक्टिविटी बढ़ गई यानी एसिडिक स्ट्रेंथ उसकी कम हो जाएगी। तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लाइक CH3 decreases एसिडिक स्ट्रेंथ। तो ये सब यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं ना, नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन, रीजनिंग, साइंटिफिक रीजनिंग, ये 5 पॉइंट्स इसीलिए आज आपको अलग से पढ़ा रहे हैं, है ना, कि it reacts with NaOH, KOH, producing salt, confirms the acidic nature. It also reacts with active metals like sodium, potassium, aluminium, magnesium, that also confirms the acidic nature of it. Then this third point, OH group of phenol is also orthopara directing. तो जितने इलेक्ट्रोफाइल है, इलेक्ट्रॉन लविंग ग्रुप है, वो कहाँ पर अटैक करेंगे, ऑर्थोपैरा पोजीशन पे, क्योंकि वहां इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा रहेगी। तो इलेक्ट्रोफाइल यानी इलेक्ट्रॉन लविंग रिएजेंट वहां ज्यादा अटैक करेंगे। अब बात आ गई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लाइक NO2। अब NO2 अगर रिंग में से इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर लेगा तो क्या होगा कि उसके जो नेगेटिव चार्ज है उसका इन्फ्लुएंस कम हो जाएगा।
और वो इन्फ्लुएंस कम हुआ यानी उसकी स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी, और उससे क्या होगा कि वो अपोजिट वाले चार्ज यानी प्रोटॉन से रिएक्ट नहीं करेगा जल्दी, और दैट विल इंक्रीज द एसिडिक स्ट्रेंथ। तो अगर एक नाइट्रो ग्रुप रहेगा तो एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ेगी, दो रहा नाइट्रो ग्रुप तो और ज्यादा बढ़ेगी, तीन नाइट्रो ग्रुप अगर फिनॉल के साथ में रह गए तो वो तो सुपर एसिडिक हो जाएगा फिर, है ना, और एसिडिक स्ट्रेंथ उसकी बढ़ जाएगी। करेक्ट है? तो याद रखना बेटा, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप increases acidic strength of phenol. नेक्स्ट है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लाइक CH3, है ना, जितने अल्काइल ग्रुप है दे पुश देयर इलेक्ट्रॉन पेयर, तो वो अपने इलेक्ट्रॉन पेयर इसको रिंग को देंगे, रिंग को अपने इलेक्ट्रॉन और देंगे तो क्या होगा, रिंग पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी यानी नेगेटिव चार्ज और ज्यादा पावरफुल हो जाएगा, और नेगेटिव चार्ज पावरफुल हो गया तो वो फिर इसके साथ रिएक्ट करेगा, इसको खींचेगा अपने तरफ, इसको खींच लिया यानी एसिडिक स्ट्रेंथ कम हो जाएगी। सो दीज आर फ्यू पॉइंट्स वन शुड रिमेंबर व्हेन वी टॉक अबाउट द एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ phenol. Okay, now we will take another aspect to discuss the reactivity of phenol, and that is halogenation, और हेलोजिनेशन में ब्रोमिनेशन पढ़ते हैं हम लोग, ब्रोमिनेशन ऑफ फिनॉल। तो बेटा ब्रोमिनेशन ऑफ फिनॉल बड़ा इंटरेस्टिंग रिएक्शन है, सिंपल रिएक्शन है, इसको दो पार्ट में पढ़ने वाले हैं हम लोग। रिएक्शन विथ ब्रोमीन वाटर, रिएक्शन विथ ब्रोमीन वाटर। So when phenol is reacted with bromine water, it gives bromo 2,4,6 tribromophenol. तो मुझे फिनॉल का स्ट्रक्चर बनाना होगा यहाँ पर। So here is phenol OH group and alternate double bond. It is reacted with bromine water. Okay. So it is reacted with bromine water at room temperature. Okay, at room temperature. So it gives 2,4,6 tribromophenol. It gives 2,4,6 tribromophenol, a yellowish white precipitate of 2,4,6 tribromophenol. देखेंगे आप यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन, देखो बेटा ये आ गया ऑर्थो सेकेंड पोजीशन Br, ये 2, ये फोर्थ पोजीशन, एंड दिस इज द सिक्स्थ पोजीशन। दिस पोजीशंस आर व्हाट, ऑर्थो एंड पैरा, ये दोनों पोजीशन ऑर्थो है और ये पैरा है। तो हमने तो यहाँ बोला है कि जो OH ग्रुप है, जो OH ग्रुप है वो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप होता है। तो ये पॉइंट नंबर 3 में हम देख रहे हैं कि ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है, so bromine comes at ortho para position. Okay, तो यहाँ पर thrice Br2, 3 हाइड्रोजन रिलीज हो गए, we get thrice HBr as the product. तो 2,4,6 tribromophenol, tribromophenol. Okay, 2,4,6 tribromophenol reaction with bromine water. अभी ब्रोमिनेशन को कंटिन्यू करते हैं, रिएक्शन विथ ब्रोमीन लिक्विड, विथ ब्रोमीन लिक्विड। अब ब्रोमीन लिक्विड और ब्रोमीन वाटर में ये क्या फर्क आ रहा है? ब्रोमीन लिक्विड यानी ब्रोमीन विल बी dissolved in acetic acid, that is what we call as bromine in liquid state. Okay, bromine in liquid state means what? Bromine in acetic acid, here bromine in water. तो फिनॉल और ब्रोमीन वाटर 2,4,6 देता है, तो ब्रोमीन लिक्विड क्या देगा? इट गिव्स अ मिक्सचर। तो यहाँ फिर से हम फिनॉल ड्रॉ करें, here is the benzene ring having OH group, phenol बना दिया हमने, and now it is reacted with bromine liquid. आप बस इतना लिख देंगे bromine liquid तो वो समझता है। This requires one
organic solvent carbon disulfide at low temperature. कार्बन डाइसल्फाइड एट लो टेम्परेचर। तो सॉल्वेंट यूज करना है कार्बन डाइसल्फाइड, और ब्रोमीन को लिक्विड स्टेट में बनाने के लिए क्या करेंगे, एसिटिक एसिड में डिसॉल्व करेंगे। अब क्या आ जाएगा यहाँ पर, ये ब्रोमीन ऑर्थो पैरा मिक्सचर दे देगा इसका। तो यहाँ पर हम मिक्सचर बनाते हैं, तो दो फिनॉल आ गए, ये फिनॉल OH, ये रिंग बना दी है, तो समझ रहा है आपको ऑल्टरनेट डबल बॉन्ड है। हियर इज व्हाट द अदर फिनॉल। नाउ इट गिव्स अ मिक्सचर ऑर्थो ब्रोमोफिनॉल, जिसको हम बोलेंगे 2 ब्रोमोफिनॉल, एंड पैरा ब्रोमोफिनॉल दैट इज 4 ब्रोमोफिनॉल। तो ये है ऑर्थो ब्रोमोफिनॉल। IUPAC नेम लिखना होगा तो 2 ब्रोमोफिनॉल, पोजीशन बताएंगे है ना, 2 ब्रोमोफिनॉल। हियर दिस विल बी पैरा ब्रोमोफिनॉल, और पोजीशन रहेगी तो क्या पोजीशन है ये, 4 पोजीशन, 4 ब्रोमोफिनॉल, 4 ब्रोमोफिनॉल। अब साइड प्रोडक्ट बनाना है आपको, तो साइड प्रोडक्ट क्या आएगा, ट्वाइस HBr। ओके, तो ट्वाइस HBr आपको ये साइड प्रोडक्ट। अब यहाँ पर 2 डेरिवेटिव मिल रहे हैं, एक ऑर्थो ब्रोमो और एक पैरा ब्रोमो। तो आप बोल दीजिए मुझे इसमें से मेजर और माइनर लिख सकते हैं हम लोग। तो मेजर क्या होगा मृणांक, मेजर हमेशा स्टेबल जो रहेगा वो मेजर प्रोडक्ट होता है ना। तो पैरा डेरिवेटिव will be the major product and ortho derivative will be the minor product। तो ये हो गया आपका ब्रोमिनेशन। फर्स्ट केमिकल रिएक्शन, एसिडिक प्रॉपर्टी तो प्रूव कर दिया, अब पहली केमिकल एक्चुअल रिएक्शन आ गई हेलोजिनेशन, और हेलोजिनेशन में हमने ब्रोमिनेशन कंसिडर किया। ब्रोमिनेशन कैन बी कैरीड आउट इन 2 ways। One is with bromine water giving 2,4,6 tribromophenol. Another is bromine liquid. I told you bromine liquid means bromine is dissolved in acetic acid. And when phenol is reacted with bromine liquid in presence of carbon disulfide as a CH2 means carbon disulfide. Sulfur 2 times है ना, तो carbon disulfide at low temperature it gives a mixture orthobromophenol and para-bromophenol. Out of that, para-bromophenol being a symmetrical structure is obtained as major product। तो ये हो गया ब्रोमिनेशन। Now third reaction देखते हैं, that is nitration। अब नाइट्रेशन मीन्स सब्स्टिट्यूशन ऑफ नाइट्रो ग्रुप। ओके, नाइट्रेशन भी 2 तरीके से पढ़ेंगे, डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड से रिएक्ट करेंगे और कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड से रिएक्ट करेंगे। तो इसमें भी A और B पार्ट आता है विथ डाइल्यूट HNO3। डाइल्यूट HNO3 नाइट्रेशन विल बी कैरीड आउट बाय यूजिंग नाइट्रिक एसिड। अब नाइट्रिक एसिड को हम लिखते कैसा है, HONO2, क्योंकि हमें NO2 ग्रुप चाहिए ना, तो वो दिखना चाहिए क्लियरली हमको, नाइट्रेशन। तो डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड एट लो टेम्परेचर, देखते हैं फिनॉल क्या देगा हमें। तो यहाँ फिर से हम फिनॉल ड्रॉ कर रहे हैं। फिनॉल is reacted with dilute HONO2, it gives a mixture low temperature, correct। ध्यान में रखना है, dilute nitric acid at low temperature, it gives a mixture of ortho and para derivative। so मुझे यहाँ ये फिर से फिनॉल structure plus another phenol, so we get mixture of ortho and para derivative।
So here comes ortho NO2, here comes para NO2 mixture and side product जो मिल जाएगा वो twice H2O. So this is ortho nitrophenol and this is para nitrophenol. और फिर से वही लॉजिक रहेगा, दिस विल बी द मेजर प्रोडक्ट एंड ऑर्थो विल बी द माइनर प्रोडक्ट एंड नोमेनक्लेचर वैसे ही होगा, ऑर्थो नाइट्रो यानी 2 नाइट्रोफिनॉल, पैरा मीन 4 नाइट्रोफिनॉल. सो dilute nitric acid gives a mixture of ortho nitro and para nitrophenol. Likewise, when we take this, है ना, when we take concentrated nitric acid with concentrated nitric acid HNO3, फिर से HNO3 को HONO2 लिखने की हैबिट रखेंगे. Now with concentrated HNO3, this reaction is carried out in presence of concentrated sulfuric acid. Okay, so concentrated sulfuric acid, that we have to remember. So phenol लिया बेटा यहाँ पर, अब इसे रिएक्ट कर रहे हैं ना concentrated nitric acid, 3 times लेना है concentrated nitric acid in presence of concentrated sulfuric acid. So nitration is always carried out by using concentrated nitric acid in presence of concentrated sulfuric acid. Okay, अब क्या मिलेगा यहाँ प्रोडक्ट हमें? प्रोडक्ट बड़ा इंटरेस्टिंग मिलने वाला है, एक यूनिक कंपाउंड मिलेगा जिसका एप्लीकेशन भी हमें याद रखना है. तो ये तो फिनॉल आ गया. अब 3 टाइम्स लिया HONO2 करेक्ट है, नाइट्रिक एसिड. व्हाट वी गेट? We get here 2,4,6 trinitrophenol. 2,4,6 trinitrophenol. तो नाम लिखते हैं 2,4,6 trinitrophenol. And this is known as picric acid. कौन सा एसिड? पिक्रिक एसिड. स्पेलिंग ठीक से लिखना, पिक्रिक एसिड. ओके, पिकनिक नहीं. इट गिव्स 2,4,6 trinitrophenol, that is picric acid. And this picric acid application क्या है? This is used as explosive, picric acid. It is also used as a germicide. तो हम पढ़ रहे हैं third reaction, nitration of phenol, correct? Nitration of phenol. And once again, as I told you, it is done in 2 ways, using one dilute nitric acid, giving mixture ortho and para nitrophenol at low temperature with concentrated nitric acid in presence of concentrated sulfuric acid. It gives 2,4,6 trinitrophenol. 2,4,6 trinitrophenol known as picric acid. And picric acid is an explosive, है ना. तो RDX में ये picric acid का यूज होता है, picric acid. Okay, so we have taken the nitration of phenol. Now we'll take sulfonation of phenol. Sulfonation of phenol. Sulfonation of phenol, fourth reaction. Sulfonation of phenol, यानी इसे अब रिएक्ट करना है सल्फ्यूरिक एसिड से, using concentrated sulfuric acid. Once again here the acid remains concentrated H2SO4, but temperature condition becomes different.
At different temperature it gives a different derivative. कैसे मिलता है डिफरेंट डेरिवेटिव ये हम देखेंगे, है ना। तो यहाँ तो हम फिनॉल ड्रॉ कर लेते हैं पहले। आपको इसके सारे स्टेटमेंट्स जो है ना ये हमारे नोट्स में मिल जाएंगे। सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 कॉन्सेंट्रेटेड यूज करना है ना। और बेटा देखो ये सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला हम कैसा लिखने वाले हैं, HOSO3H। हमें सल्फोनिक ग्रुप चाहिए सामने, है ना, सल्फोनिक ग्रुप चाहिए सब्स्टिट्यूशन में, दैट्स व्हाई नोन एज सल्फोनेशन। यहाँ नाइट्रेशन यानी नाइट्रो ग्रुप आना चाहिए ऑर्थो पैरा पोजीशन पे। और पैरा ऑर्थो पैरा पे क्यों आता है, क्योंकि OH ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है। यहाँ पर भी हम सल्फ्यूरिक एसिड यूज करेंगे, कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड यूज करेंगे HOSO3H। तो सल्फोनिक ग्रुप कौन सा है, SO3H, ये कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। अब कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड जब हम यूज करेंगे तो दो टेम्परेचर कंडीशन रखेंगे। एक कंडीशन रहेगी रूम टेम्परेचर RT दैट इज 298 केल्विन, और दूसरा होगा हाई टेम्परेचर दैट इज 373 केल्विन, 373 केल्विन। तो लो टेम्परेचर पे प्रोडक्ट ऑर्थो डेरिवेटिव बनता है और हाई टेम्परेचर पे पैरा डेरिवेटिव बनता है। तो फिनॉल का जो सल्फोनेशन होगा, है ना, ये फिनॉल लिखा आपने और इसका बेटा सल्फोनेशन किया, तो जब रूम टेम्परेचर पे हम ऑपरेट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, ऑर्थो डेरिवेटिव। ये देखो सल्फोनिक ग्रुप SO3H, है ना, ये SO3H आ गया, HOSO3H सल्फोनिक ग्रुप, वी कॉल इट एज ऑर्थोफिनॉल सल्फोनिक एसिड, ऑर्थोफिनॉल सल्फोनिक एसिड, ऑर्थोफिनॉल सल्फोनिक एसिड। अब हाई टेम्परेचर पे आ जाते हैं, 373 केल्विन, हाई टेम्परेचर 373 केल्विन यानी 100 डिग्री सेंटीग्रेड, जिसपे वाटर बॉईल होता है ना, तो 273 0 डिग्री हो जाता है, तो ये 373 केल्विन मीन्स 100 डिग्री सेंटीग्रेड, करेक्ट है। तो लो टेम्परेचर पे ऑर्थो डेरिवेटिव और हाई टेम्परेचर पे पैरा डेरिवेटिव। तो हाई टेम्परेचर पे पैरा डेरिवेटिव लेते हैं, ये हमने लिखा OH ग्रुप, ये रिंग आ गया। सल्फोनिक ग्रुप लगाना है, सल्फोनिक ग्रुप कौन सा है, SO3H, करेक्ट। तो ये बेटा बना पैराफिनॉल सल्फोनिक एसिड, पैराफिनॉल सल्फोनिक एसिड, करेक्ट है। और नेचुरली ये मेजर प्रोडक्ट होगा, वो माइनर होगा, लेकिन दोनों में कंडीशन अलग है ना, कंडीशन अलग है। पैराफिनॉल सल्फोनिक एसिड और साथ में क्या मिलने वाला है, वाटर, क्योंकि यहाँ का H है ना, ये H निकल जाएगा OH के साथ, तो वो क्या बनाता है, वाटर मॉलिक्यूल। तो फोर्थ हो गई सल्फोनेशन रिएक्शन ऑफ फिनॉल। तो पहला एसिडिक पढ़ा, एसिडिक नेचर। सेकेंड ब्रोमिनेशन किया हमने, ब्रोमिनेशन कैन बी कैरिड आउट इन 2 ways, with bromine water and liquid bromine. Then we had seen nitration. Nitration is also done in 2 ways, dilute nitric acid and concentrated nitric acid. Dilute nitric acid gives what? It gives ortho para mixture, dilute nitric acid, and concentrated nitric acid in presence of concentrated sulfuric acid gives 2,4,6 trinitrophenol, that is picric acid. And sulfonation using concentrated sulfuric acid at different temperature, that is 298 Kelvin room temperature or 373 Kelvin or 100 degree centigrade,
तो लो टेम्परेचर याद कैसा करना है, phenol on sulfonation at low temperature gives ortho derivative. Phenol at high temperature on sulfonation gives para derivative. बस ये सेंटेंस आप याद रखेंगे, ये लिखेंगे तो अपने आप क्लियर हो जाएगा. ओके, अब नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं हम. ये सल्फोनेशन हो गया. नेक्स्ट रिएक्शन कम्स एज RT रिएक्शन, राइमर टाइमन रिएक्शन, है ना. तो नेक्स्ट एडिशन रिएक्शन इज राइमर टाइमन. टाइमन, अब मैन नहीं लगाते टाई तो, है ना. राइमर टाइमन रिएक्शन. तो फिनॉल में RT रिएक्शन को याद रखने का है, राइमर टाइमन रिएक्शन. अब इस रिएक्शन में एक अलग प्रोडक्ट मिलने वाला है, वेरी डिफरेंट प्रोडक्ट वी आर गेटिंग. अगेन ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ही रहेगा. तो इट इज इनफैक्ट 3 स्टेप रिएक्शन. इसमें एक इंटरमीडिएट प्रोडक्ट भी बनता है. तो ये फिनॉल लिया, मैं पहले स्ट्रक्चर बना लेता हूं तो फिर आपको एक्सप्लेनेशन में इजी हो जाएगा, है ना. देन इट प्रोड्यूसेस ऑन रिएक्शन, it produces a intermediate product, और फिर इंटरमीडिएट प्रोडक्ट को रिएक्ट करेंगे एक्सेस ऑफ NaOH के साथ में. अब ये तीनों सारे बेंजीन रिंग तो एक जैसे बनेंगे नहीं, है ना. ये सब बेंजीन रिंग का शेप अलग अलग आते जाएगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना. फंडा सही आना चाहिए और याद रखने की अपने को टेक्निक डेवलप करना है. तो ये सब फिनॉल बन गए मेरे, हो गया. तो बेसिक कंपाउंड फिनॉल आ गया. क्या करना है राइमर टाइमन रिएक्शन में? फर्स्ट इट इज रिएक्टेड विथ क्लोरोफॉर्म CHCl3, क्लोरोफॉर्म इन प्रेजेंस ऑफ एक्वस NaOH. Correct? So phenol, first step, reacts with chloroform in aqueous NaOH, will form an intermediate product, और intermediate product ये मिलेगा CHCl. ये intermediate product है, unstable product है. इसका nomenclature भी नहीं करना है अपने को. intermediate, unstable. It is reacted with NaOH, excess of NaOH. अरे यार जगह भी नहीं बची अब तो, खैर लिखते हैं CHCl2 will create some space. आ गया. ओके जी. तो यहाँ पर ये हमारा NaOH आ गया. करेक्ट, NaOH. एक्सेस यहाँ भी लिया था, फिर से रिएक्ट करते हैं NaOH से, यानी इट इज इन एक्सेस अमाउंट. तो क्या होगा, ये ONa तो वैसा ही रहेगा, एंड नाउ इट गेट कन्वर्टेड, दिस CHO ग्रुप गेट कन्वर्टेड टू CHO ग्रुप. This CHO group now on acid hydrolysis, on acid hydrolysis it gives this compound named as 2-hydroxybenzaldehyde. 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 And it is also commonly called as salicyl aldehyde. I'm sorry. तो ये जो प्रोडक्ट आपको मिला salicyl aldehyde, it is obtained by acid hydrolysis. Okay? तो ये भी इंटरमीडिएट ही प्रोडक्ट बनता है. इसका नोमेनक्लेचर आप दे सकते हैं, ये सोडियम फिनॉक्साइड एंड अल्डिहाइड. तो
बेंजल्डिहाइड सोडियम फिनॉक्साइड। तो अल्डिहाइड सोडियम फिनॉक्साइड, दिस इज अनदर इंटरमीडिएट प्रोडक्ट, है ना। तो इससे क्या होता है, NaOH तो बेटा यहीं पर लिया है, हम क्या कर रहे हैं, स्प्लिट करके दिखा रहे हैं ये दोनों को अलग अलग, अदरवाइज प्रोडक्ट तो डायरेक्टली यही मिलता है। ओके, है ना। तो इसको याद कैसे रखेंगे, इसका स्टेटमेंट, फिनॉल ऑन रिएक्शन विथ क्लोरोफॉर्म in presence of excess of NaOH, followed by acid hydrolysis gives salicyl aldehyde. So this is what the statement। तो ये इंटरमीडिएट प्रोडक्ट को आप ध्यान में रखेंगे। तो ये रिएक्शन नंबर 5 हो गया था हमारा, है ना। तो याद रखेंगे, वी विल कंटिन्यू टुमारो। मैं कुछ असाइनमेंट आपको अपने ग्रुप में भेजने वाला हूँ इसी टॉपिक से रिलेटेड। ओके, सी यू टुमारो।